Assalamu alaikum. Inshallah, today we will do the complete exercise of the unit number 7, which is about a poem, Mohink. I have already done the paraphrasing and the stanza question answers of this poem, and I will provide the link in the description, so please check it. So, let's read the poem once again. There was never a sound beside the wood but one, and that was my long sighs whispering to the ground. What was it whispered? I knew not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun, something perhaps about the lack of sound, and that was why it whispered and did not speak. It was no dream of the gift of idle hours or easy good at the hand of fae or elf. Anything more than the truth would have seemed too weak to the earnest love that laid the soil in rows, not without feeble pointed spikes of flowers, pale orchises, and scared a bright green snake. The fact is the sweetest dream that labor knows. My long sighs whispered and left the hay to make. So very beautiful poem it is. Now we will start from the post-reading questions. Question is, hard work is the key to success. What are your aspirations in life and how will you plan to reach your destination? यानी वो पूछ रहे हैं कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है, तो आपकी ज़िंदगी में आपने क्या सोचा हुआ है, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आप इस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपका प्लान क्या है. So you can write by your own. I am providing a few examples. For example, hard work is important for success. My goal is to become a teacher. I will study hard, learn from my teachers, and practice teaching. This way I will reach my dream. Or you can write, hard work is important for success. My goal is to become a pilot. I will study hard, learn about airplanes. You can also add that I will learn aviation and practice flying. This way I will reach my dream. Or you can write anything about your own aspiration. So come towards the question answers. Here the word meanings are also given, so you can learn it by yourself. Okay, question answers. Question 1 is, who is whispering to the ground? ज़मीन के साथ सरगोशियाँ कौन कर रहा है? आंसर इज साइट. साइट मीन्स दरांती. ज़मीन के साथ सरगोशियाँ दरांती कर रही है, साइट कर रही है. क्वेश्चन 2, व्हाट वाज विस्पर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट? यानी सरगोशी की क्या गई. विस्पर्ड इज द पैसिव वॉइस, के जो सरगोशी की क्या गई. सो here are 3 kinds of whispering. Number 1 is the things which are whispered. The sight is whispering, and some things are not whispered, and then there is a final whisper. So let's check. Sight is whispering. Number 1 about heat of the sun and about lack of sound. Then sight is not whispering about gift of idle hours and about easy gold by fair elf. यानी वो 2 चीज़ों के बारे में सरगोशियाँ कर रही है कि गर्मी बहुत है, सूरज की गर्मी, या बहुत ज़्यादा आवाज़ की कमी, लैक ऑफ साउंड, आवाज़ की कमी, कोई आवाज़ नहीं है. और वो क्या सरगोशी नहीं कर रही कि फारिग वक्त का तोहफ़ा या आसानी से मिल जाने वाला सोना जो कोई परी या कोई बौना दे जाए. फे मीन्स परी, एल्फ मीन बौना, और दे आर द मैजिकल क्रिएचर्स. फाइनल विस्पर, जो कि उसने सबसे अहम, जो उसने आखिर में जो फाइनल विस्पर किया, फाइनल सरगोशी की, वो क्या थी कि द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट द लेबर नोज. और वो क्या ड्रीम होता है? गिफ्ट ऑफ, यानी रिवॉर्ड, मेहनत का फल, reward of hard work. Question 3, enlist poetic devices from the poem. There are so many poetic devices in the poem, so we have you can write any poetic devices, and at least always check the number of the question and then write the answer. Okay, for example, there are personification. That sight is whispering. Personification is when we are giving the attributes or qualities of a human to the non-living things. Here sight is the non-living thing and the whispering is the quality of humans, and we are giving the human quality to the non-living thing. So that's why whispering is a personification, because sight is whispering. Then metaphor is when we compare 2 things without using as or like. So pale orchises is a metaphor of beauty, and a bright green snake is a metaphor of challenges. Then symbolism होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ का के लिए कोई हम इशारा समझते हैं, कोई सिंबल समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि जो फाख्ता या जो डव है वो पीस का सिंबल है. ओके, सिमिलरली जो रोज़ है वो ब्यूटी का सिंबल है. सो हेयर द साइड सिम्बलाइजेज हार्ड वर्क एंड द हे सिम्बलाइजेज रिवॉर्ड. हे कहते हैं जो भूस होता है या भूसा होता है ना, कटी हुई सी घास जो होती है, जो थोड़ी सी खुश्क फॉर्म में हो, उसे हे कहते हैं. एलिटरेशन, वुड बट वन. हे यू कैन सी दैट
Okay, first of all, let's check what is alliteration. Alliteration होता है कि when the starting alphabets of the words are similar, especially when they are consonant, बल्कि कहते ही consonants को, यानी कि जब first letter of word जो कि consonant हो, जो कि vowel ना हो, जो कि same हो. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि word तो W से शुरू हो रहा है लेकिन one तो O से शुरू हो रहा है, तो ये alliteration कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि उनकी sound same है. Word is starting from W but it is giving the V sound, and one is starting from O but it is also giving the V sound, one. That's what is alliteration, word but one. Then what was it whispered? Repetition of W sound. The new nod, although the new is starting from K but K is silent here, so KN is the sound of N, so new nod. That's why it is alliteration. Similarly, was white whispered is again a alliteration. Then question 4, what is the meaning of the sweetest dream that liver knows? This line means that the result of one's hard work is the most satisfying and rewarding experience that a person can have. दैन यानी जो आप जब मेहनत से कोई चीज़ हासिल करते हैं वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है. मुफ्त में मिलने वाला पैसा या फारिग वक्त में वो इत्मीनान नहीं होता जो मेहनत में होता है. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द पोएम गोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड एंगेजमेंट विद नेचर, नॉट फ्रॉम आइडल टाइम एंड ईजी मनी. ये है सबसे बड़ी बात इसमें कि असल चीज़, असल इत्मीनान मेहनत से होता है, फारिग वक्त से या आसानी से मिलने वाले पैसे या सोने से नहीं. द पोएट फाइंड्स जॉय एंड पीस इन द सिंपल एक्ट ऑफ मोइंग एंड डिस्क्राइब्स द जेंटल whispering sound the sight makes. This shows a sense of peace and appreciation for hard work and its reward. Question 6, what is the form and tone of the poem? Form is the sonnet. Sonnet is the 14 lines, which is sonnet is a poem which has the 14 lines, and I have talked about it detailed in the video about paraphrasing and stanza question answers. You can check it. Then tone is peaceful, calm, thoughtful and serene. Serene means पुरसुकून. Tone कहते हैं यानी उसका overall mood कैसा है poem का. Here are some poetic devices which are mentioned here. Imagery होता है वो चीज़ जो कि poetic devices होती क्या है? Poetic devices होती हैं जो कि किसी भी poem में या किसी भी prose में देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिटरेचर. पोएम जो कि राइमिंग फॉर्म में होती है, एंड प्रोज जो कि राइमिंग में ना हो, जो पोएम ना हो उसे प्रोज कहते हैं. प्रोज कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी स्टोरी, इट कैन बी एसे, इट कैन बी पैराग्राफ, इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ नॉट अ पोएम. इट इज़ कॉल्ड प्रोज. सो चाहे प्रोज हो चाहे पोएम हो, उनमें पोएटिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं. इमेजरी क्या होती है? अच्छा, होती क्यों यूज़ करते हैं? खूबसूरती के लिए, ठीक है, और एक वज़न पैदा करने के लिए, एक अल्फाज की खूबसूरती या जिसे हम कहते हैं ना उसमें मंजर कशी और ख़ूबसूरती लफाजी, तो इसके लिए हम ये पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ इमेजरी? कि वो अल्फाज, वो चीज़ें जो कि हमारी 5 सेंसेस से जिनका ताल्लुक़ हो, उसे कहते हैं इमेजरी. फॉर एग्जांपल फ्रेगरेंस, या कोई जायका आ सकता है, कोई नज़ारा आ सकता है वगैरह. मेटाफर जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और इज़ या लाइक, एज या लाइक यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जांपल लाइफ इज़ अ बनाना क्रीम पाई, टाइम इज़ मनी. यहाँ पे टाइम इज़ एज प्रेशियस एज मनी नहीं है, टाइम इज़ मनी है. ओके. देन पर्सोनिफिकेशन क्या है कि जब हम इंसानी जो सिफ़ात हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को दे दें. देन सिमिली क्या है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें और एज और लाइक यूज़ करें. फॉर एग्जांपल ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन इज़ सिमिली, एंड ही इज़ अ लायन इज़ मेटाफर. एलिट्रेशन जबकि इनिशियल साउंड्स जो हों किसी वर्ड के वो सेम हो और जो कि कॉन्सोनेंट्स हो. देन ओनोमोटोफी होता है जिसमें हम कोई आवाज़ों का कोई साउंड हो, मसलन क्लिक या बज़ या टिकटॉक या हिस एट्सेट्रा. राइम को होता है जब 2 वर्ड्स जो हों जो कि एक जैसे साउंड है. फॉर एग्जांपल वायर, फायर एट्सेट्रा. आगे आ जाएं जी. एक्टिविटी है. एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि एक पैनल बनाएं, पेयर ऑफ 2 बनाएं और डिस्कस करें इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. तो हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं. सो लेट्स चेक पैराग्राफ क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. क्यों पैराग्राफ लिखा? बिकॉज इन योर पेपर पैटर्न कोई ऑरल एक्टिविटी तो नहीं होगी ना. पेपर कैसा है? पेपर में आपके पैराग्राफ होंगे, तो हम इसको, और जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी है तो उसका पैराग्राफ हम प्रिपेयर कर लेते हैं. और एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको पहले भी बार बार बताया है कि ऑलवेज स्टार्ट अ पैराग्राफ विद एन अट्रैक्टिव हुक स्टेटमेंट. हुक स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. ओके. सो सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड लर्निंग. अब आप देखें कितनी खूबसूरत लाइन है ये.
ये नहीं कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह आपने स्टार्ट नहीं करना। आपने एक अच्छा पैराग्राफ को एक अच्छे स्टार्ट से लेके चलना है। एंड द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड हुक स्टेटमेंट विच मस्ट बी अट्रैक्टिव। इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी अ कोट, इट कैन बी अ फैक्ट, इट कैन बी एनी अट्रैक्टिव थिंग। सो सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट। कामयाबी कोई हादसा नहीं है, ये एक मेहनत है और मुस्तकिल एक अज़म है और सीखना है। हार्ड वर्क इज़ द की टू अचीव आवर ड्रीम्स। Hard work is the key to achieve our dreams. When we put in effort and don't give up, we can get our goals. We can perform well in school, become an athlete, or learn a new skill. Hard work teaches us important lessons like patience and determination. It helps us grow stronger and smarter. Imagine a seed that needs water and sunlight to grow into a big, strong tree. Our efforts are like that water and sunlight. Without hard work, even the best plans and dreams can fail. So, whether it's studying for a test, practicing a sport, or working on a hobby, remember that hard work always helps you improve and succeed. With dedication and effort, anything is possible. Okay? So, एक खूबसूरत सा पैराग्राफ था। ये कभी भी नहीं मैं कहूँगी कि आप इसको रट्टा लगाएं। It is for your guidance. इसको सीखें and you can write in your own words. Okay? आगे चलते हैं। आपके इसमें क्या है, ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क है कि सिलेक्ट अ पैनल ऑफ 4 स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल एक्ट एज ऑडियंस एंड असाइन देम द टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ। अगेन वी विल डू द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखेंगे, क्या है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी पर सोशल मीडिया के असरात। Okay, again we will start from attractive hook statement. Social media is everywhere in our lives today, shaping how we connect and share. It helps us stay in touch with friends and family. अच्छा, याद रखने की बात, आपने अगर जो जर्नल पैराग्राफ दिया गया है ना, सोशल मीडिया पे जर्नल है, ये नहीं बताया गया उसके फ़ायदे लिखें या उसके नुकसान लिखें, सिंपल है कि इम्पैक्ट। तो उसमें आपने दोनों चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, फ़ायदे भी और नुकसान भी, या उसके बेनिफिट्स भी और उसके ड्रॉबैक्स भी। So it helps us stay, we will start from the benefits. It helps us stay in touch with friends and family no matter where they are in the world. We can easily share pictures, videos and updates about our lives. यानी हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ राब्ते में रह सकते हैं, ये उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। We can also get information about current events and news. हम जो है हालात हाज़िर के बारे में बाखबर रह सकते हैं। फिर सोशल मीडिया कैन ऑफर सपोर्ट फॉर वेरियस इंटरेस्ट, बहुत सी चीज़ों में ये हमें सपोर्ट भी देता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। अब आगे ड्रॉबैक्स। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया कैन रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। देयर आर इम्पैक्ट्स ऑन आवर मेंटल हेल्थ ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। पीपल कंपेयर देयर लाइव्स टू अदर्स एंड फील लेफ्ट out or unhappy. It is important to use social media wisely and not let it take over our lives. By finding a balance between online and real life activities, we can make the most of social media's benefits while avoiding its potential drawbacks. Okay, so next is grammar. Put the verb into the correct tense form. यहाँ पे आपने verbs दिए हुए हैं, उन्हें हमने correct form में लगाना है। इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। आप भी अपनी, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको प्लीज़ काइंडली फुल स्क्रीन में रखिएगा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ओके, फर्स्ट पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं ना, ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दिए गए हैं और हमने इस वर्ब को एक सही टेंस में, सही ग्रामर में लेके आना है। वी कैन गो आउट नाउ, हम अब जा सकते हैं। नाउ है, नाउ से आपको फ़ौरन पता चल गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, कि हम अभी जा सकते हैं या हम अब जा सकते हैं। इट डैश नॉट स्लैश रेन, इट का इसका मतलब है कि नेगेटिव में आपने लिखना है एनी मोर। तो हमें क्या पता चला, नाउ से हमने पहचाना कि ये अभी की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हमने क्या लिखा, इट इज़ नॉट रेनिंग, कि हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही, अब बारिश नहीं हो रही, दैट्स वाई इज़ नॉट रेनिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अली डैश वेट, इन द ब्रैकेट वेट। तो हमने वेट को के वर्ड, वेट इज़ अ वर्ड, इस वेट को हमने सेट करना है कि क्या सेंस बने। फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव, यानी दो वर्ब्स हैं, एक वेट है एक अराइव है। हम इसको दो तरह कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा रोमन में 1 के साथ लिखा हुआ है विल वेट। अली विल वेट फॉर मी व्हेन आई अराइव, ये हो गया कंडीशनल 1। ये भी इंशाल्लाह आई विल टीच यू कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। और दूसरा जो ज़्यादा ईजी है, अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। तो ये पास क्यों है, क्या देखिए इसकी सेंस बनाएंगे ना, अली इंतज़ार कर रहा था मेरा जब मैं पहुंचा। अली इंतज़ार कर रहा है नहीं, अली इंतज़ार कर रहा था जब मैं पहुंचा। व्हेन से हमने अंदाज़ा लगाया, तो उसकी ओवरऑल फॉर्मेशन है ना, तो इसमें ये फिट बैठेगा।
नंबर 3, आई डैश गेट हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट, ब्रैकेट में गेट है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आई एम गेटिंग आएगा कि मैं इस वक्त भूखा हूँ या भूखी हूँ, चलो कहीं चलते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गो भी प्रेजेंट है, हैव भी प्रेजेंट है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगाया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई एम गेटिंग आएगा। आई गेट हंग्री सही नहीं है, आई एम गेटिंग इज़ द करेक्ट। देन व्हाट डैश इन द ब्रैकेट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, अब इसका मतलब है कि यू भी हमने पुट करना, डू भी पुट करना है कि आप फारिग वक्त में क्या, हैव यू गॉट एनी हॉबीज़, तो इसमें क्या है, व्हाट डू यू डू, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, क्या आपकी कोई हॉबीज़ हैं। माई ब्रदर यूजुअली डैश मी ऑन फ्राइडेज बट ही डैश नॉट फोन मी लास्ट फ्राइडे। अब देखें यहाँ पे यूजुअली का मतलब होता है एक चीज़ जो कि अक्सर होती है, फॉर एग्जाम्पल आई यूजुअली रीड द बुक्स इन माई फ्री टाइम। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, अक्सर, जो चीज़ अक्सर होती है, जो चीज़ हैबिचुअल होती है। अब यहाँ पर लास्ट फ्राइडे में हमें फ़ौरन पता चलेगा कि ये पास्ट है, ये गुजरा हुआ वक्त है, लास्ट के लफ्ज़ ने हमें बताया, तो इसका सेंस क्या बना कि आम तौर पर मेरा भाई मुझे फ़ोन करता है, लेकिन पिछले फ्राइडे, आम तौर पर मेरा भाई जुम्मे के दिन मुझे फ़ोन करता है, लेकिन पिछले जुम्मे को उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसकी उर्दू में सेंस बनाएं। जब उर्दू में हम सेंस बनाएंगे तो हम इजीली इसका टेंस जो है बना लेंगे। तो माई ब्रदर यूजुअली फ़ोन्स, ये प्रेजेंट टेंस, ब्रदर चूँकि सिंगुलर है तो हमने फ़ोन्स लगाया, ठीक है। वर्ड फ़ोन है, देखिए फ़ोन एक नाउन भी हो सकता है, लेकिन फ़ोन करना, हम कहते हैं ना फ़ोन आया, फ़ोन करो, मैं फ़ोन कर रही हूँ, तो फ़ोन वर्ड भी है। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। लेकिन उसने मुझे लास्ट फ्राइडे फ़ोन नहीं किया, तो यहाँ पर आएगा सिंपल पास्ट, डिड नॉट फ़ोन, और डिड के साथ एस नहीं लगाएंगे। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, मैं अरहम को देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। डैश यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा है, क्या आप उसे देखते हो, नहीं, क्या आपने उसे देखा है, तो हम कहेंगे हैव यू सीन हिम। देन व्हेन आई लास्ट सॉ यू, अब यहाँ पे लास्ट का वर्ड आ गया, जब मैंने आपको आखिरी बार देखा, तो ये कोई पास्ट चल रहा है। यू डैश ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट, आप नए फ्लैट में जाने का सोच रहे हो, तो नहीं हो सकता ना, तो आप नए फ्लैट में जाने का सोच रहे थे, तो सेंस क्या बनी, यू वर थिंकिंग। दैट्स राइट बट इन द एंड आई डैश टू स्टे वेयर आई वॉज। अब वो बंदा क्या आंसर दे रहा है कि हाँ अब ठीक है, लेकिन आखिर में मैंने यही सोचा, डिसाइडेड, इन द एंड मैंने सोचा कि मैं यहीं रह लूँ, वेयर आई वॉज, जहाँ मैं था। तो ये सारी देखिए वॉज जहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड वेयर आई वॉज, उससे पता चला कि पास्ट की बात हो रही है, और ऊपर भी सॉ पास्ट की बात हो रही है, तो एक में आएगा वर्ड थिंकिंग और दूसरे में आएगा डिसाइडेड, सेंस ये बनती है। व्हाट इज़ दैट नॉइज, ये कैसा शोर है, इज़ है, कैसा शोर है। व्हाट हैपन, क्या हो रहा है। What is that noise? What is happening? क्या हो रहा है भाई, कैसा शोर है। It's usually dry here, यहाँ पे आमतौर पर खुश्क होता है। At this time of the year, साल के इस वक्त। It dash much, अब यहाँ पर देखें सारी चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट यूज़ करेंगे। It does not rain much. Number 10, yesterday evening the phone rang 3 times. The phone dashed 3 times while we dash have dinner. यहाँ पर भी yesterday यानी पास्ट की बात हो रही है कि yesterday evening, पिछली शाम फ़ोन 3 बार बजा जब हम डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पर have जो है क्या होगा, क्या बन जाएगा, वर हैविंग, और रिंग बन जाएगा रैंग। ओके, अब आगे क्या है, वर्बल्स, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स आ गए। अच्छा जी, पहले हम एक और चीज़ कर लेते हैं। ऊपर दिया गया है यहाँ पे वोकैबुलरी में कि पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम मूविंग, और दूसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। तो हम ये देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स एंड एलिट्रेशन। राइमिंग वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, वन एंड सन, ग्राउंड एंड साउंड, वेल एंड माई सोल, स्पीक एंड वीक, रोज एंड नोज, फ्लावर्स एंड आवर्स एंड स्नेक एंड मेक। दीज आर द राइमिंग वर्ड जो कि हम काफिया, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, पाक सरजमीन शाद बात, किश्वरे सीन शाद बात, तो ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वन, सन, ग्राउंड, साउंड, वेल, माई सोल, स्पीक, वीक, रोज, नोज, फ्लावर्स, आवर्स, स्नेक, मेक, एक जैसे है ना, तो ये राइमिंग वर्ड्स हुए। एलिट्रेशन जो हमने पहले भी की, वुड बट वन, व्हाट वाज इट विस्पर्ड, न्यू नॉट वाज वाइड विस्पर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, एलिट्रेशन। अब आगे आ जाएं कि जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, इस पर कंप्लीट वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइजेस में, और उसका टॉपिक भी यही है।
और थंबनेल भी यही है कि जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। हल्का सा बता देती हूँ, जेरेंड में एंड में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और ये एज ए नाउन यूज़ होते हैं, और पार्टिसिपल्स में भी आईएनजी आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, या थर्ड फॉर्म आती है और ये एज एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। जेरेंड वर्ब होता है लेकिन एज ए नाउन यूज़ होता है, और पार्टिसिपल्स भी वर्ब होता है लेकिन एज एडजेक्टिव यूज़ होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे, और इन्फिनेटिव होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दें और वो नाउन का काम दे। ओके, सो अब हमने जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको बताना है कि ये क्या है। द चिल्ड्रंस सिंगिंग एंड लाफिंग वोक मी अप। तो सिंगिंग एंड लाफिंग दोनों जेरेंड हैं, कि उनके गाने और हंसने ने मुझे जगा दिया, ये दोनों क्या है, जेरेंड। जनी लाइक्स टू डांस, टू आगे हमने बात की थी, जब कभी टू आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ वो इन्फिनेटिव होगा। नंबर 3, देयर आर मेनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट, दिल का तोड़ना। तो ब्रेकिंग जेरेंड है, यहाँ पे ब्रेकिंग हार्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, हार्ट की क्वालिटी नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि दिल का तोड़ना, दिस इज जेरेंड। नंबर 4, अ ब्रोकन हार्ट, जहाँ पे ब्रोकन हार्ट की क्वालिटी है कि कैसा हार्ट, टूटा हुआ दिल। चूँकि ये पास्ट में है यानी ब्रोकन इज अ थर्ड फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम, टूटा हुआ दिल जो है वक्त के साथ साथ जुड़ जाता है या उसकी मरम्मत हो जाती है। मेंड मतलब होता है मरम्मत होना, पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 5, हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज नेट फैमिली इन अनदर सिटी। सो लविंग केयरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं दोनों जो कि फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 6, आई बिलीव दैट लाफिंग इज द बेस्ट कैलोरी बर्नर। लाफिंग क्या है, जेरेंड है जो कि एज ए नाउन यूज हो रहा है। आई डोंट वांट टू अचीव, टू अचीव, अचीव से पहले टू आया यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू, तो ये इन्फिनेटिव बन गया। अगेन टू अचीव, ये भी इन्फिनेटिव है। नंबर 8, ही escaped away in the waiting car. Waiting is a present participle because it is describing the car. It is not enough to succeed. To succeed is infinitive, and hunting dogs are called hounds. Hunting is present participle because it is describing the dogs. अब आ जाते हैं राइटिंग पे। ये हो गया हमारा, यार उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक स्टैंजा दिया हुआ है, नीचे उसकी पैराफ्रेजिंग भी की हुई है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन आपसे कहा गया कि इसको पैराफ्रेज करें, कंप्लीट वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी। प्लीज़ काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और उसमें लिंक को क्लिक करें और आप उसको चेक करें कि मोइंग की सारी पैराफ्रेजिंग एंड स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स। अब लास्ट रह गए ऐसे की बजाय हम करें, अच्छा समरी करेंगे मोइंग की, और ऐसे की बजाय वी विल डू द पैराग्राफ, क्योंकि 9th में ऐसे नहीं होता, 9th में पैराग्राफ होता है। सो समरी, in Robert Frost's poem Mowing, he shows how working hard in nature brings true happiness. The poem begins with the poet alone in a quiet forest where the only sound is his scythe softly whispering to the ground. He thinks the scythe might be whispering about the heat of the sun. The poet explains that the scythe's whispering isn't about dreaming of free time or easy money from magical creatures. Instead, it represents the joy of working hard. The poem describes the land with small flowers and a green snake, showing both beauty and challenges in life. In the end, Robert Frost says that the real reward of hard work, like the fresh cut hay, is the most satisfying sweetest dream anyone can have. ओके, सो ये समरी हो गया आपके, बिल्कुल सिंपल से, नहीं बार बार आपको बता रहे हैं कि फुल समरी में ये है कि असल सेटिस्फेक्शन फारिग बैठने या आसानी से मिलने वाले पैसे में नहीं होती है, असल चीज़ मेहनत में होती है। तो ये सारी चीज़ें समरीज़ की होगी। और समरी में क्या होता है, समरी में सेंट्रल आइडिया में क्या फ़र्क होता है कि सेंट्रल आइडिया में आपने सिर्फ मेन थीम बतानी होती है कि पोइम का मरकज़ी ख्याल क्या है, मेन आइडिया क्या है, और समरी में आपने सारे जो है पॉइंट्स बताने होते हैं, मेन बातें, यानी कि आपने पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। आगे है लास्ट पैराग्राफ, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ लाइक अ मास्टर की दैट ओपन्स द डोर टू सक्सेस। क्या है ये? Yes, this is hook statement. When you work hard, you make progress and create new opportunities for yourself. Success doesn't come easily. It needs dedication and effort. With the help of hard work, you will learn. अब यहाँ पर देखिए सेमीकोलन यूज़ हुआ है। सेमीकोलन यूज़ होता है कि जब एक ही बात आगे जा रही है। ओके, सो सक्सेस डजंट कम इजीली, वो आसानी से नहीं मिलती, तो सेमीकोलन लगाया कि इसी चीज़ को आगे ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है कि इट नीड्स डेडिकेशन एंड एफर्ट। With the help of hard work, you learn new skills and gain experience that help you reach your goals. Hard work teaches you to keep going and face challenges even when things are difficult. The more you work, the closer you get closer to your dreams. So remember, hard work is the key that helps you unlock your potential and reach your goals. So conclusion भी आपने बेहतरीन लिखना है और आपने hook statement भी बेहतरीन लिखनी है, तो आपका paragraph will be perfect. So hope you would understand this exercise. It's really easy and important. Assalamu alaikum.